یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ سید مبشر رفائی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بھارت اور یورپی کمیشن نے باہمی رشتوں کو معیار کی بلندیوں تک لے جانے کا دہرایا عزم۔ سائنس کا قومی دن آج۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اختراعیت کو فروغ دینے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی شعبے کی زیادہ سے زیادہ جدید کاری پر دیا زور۔ موسم میں تبدیلی کے پیش نظر وادی کے تعلیمی اداروں میں سرمائی تعطیلات میں 6 مارچ تک توسیع، اور انتظامیہ نے رمضان المبارک کے دوران بلا خلل بجلی سپلائی کرنے کا دلایا یقین۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج یورپین کمیشن کی صدر نشین ارسولا وان ڈیر لیئن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ اس دوران انہوں نے باہمی رشتوں کو معیار کی بلندیوں تک لے جانے سے جڑے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کی شراکت داری اعتماد، بھروسے اور جمہوری اقدار پر مبنی ہے۔ یورپین کمیشن پریزیڈنٹ اور کالج آف کمشنرز کی یہ بھارت یاترا ابھوتپورو ہے۔ یہ کیول بھارت میں یورپین کمیشن کی پہلی یاترا نہیں، بلکہ یہ کسی بھی ایک دیش میں یورپین کمیشن کا پہلا اتنا ویاپک انگیجمنٹ ہے۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یورپی کمیشن کی صدر نشین نے کہا کہ بھارت کی مہمان نوازی بے مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین بھارت کے ساتھ مل کر کام کر کے مختلف چیلنجوں کا حل نکالنے کے لیے تیار ہے۔ آج سائنس کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 28 فروری 1928 کو ایک معروف بھارتی سائنسدان سر سی وی رمن کی طرف سے رمن ایفیکٹ کی دریافت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے وگیان بھون نئی دلی میں قومی سائنس ڈے کے تعلق سے منعقدہ ایک تقریب پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، I always take fancy in telling the youngsters in whatever institutions I go, because the generations have changed. It's not easy for them, for these teenagers and students of today, what it means to be a pioneer in vaccine. Because today, which was not taken seriously by the world for its therapeutic or curative healthcare, is today being acknowledged as a leader in preventive healthcare. ادھر یونیورسٹی آف کشمیر میں سائنس کے قومی دن کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اختراعیت کو فروغ دینے نیز دیرپا مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کی مزید جدید کاری پر زور دیا۔ انہوں نے معروف سائنسدان سر سی وی رمن کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر کی یونیورسٹیوں کو ہدایت دی کہ وہ یونیورسٹیوں میں مصنوعی ذہانت کی لیبارٹریاں قائم کریں۔ اس دوران ایل جی نے آج سری نگر میں سون میراث نامی ثقافتی میلے کی اختتامی تقریب میں بھی شرکت کی۔ سائنس کے قومی دن کے بارے میں سینئر سائنس کنسلٹنٹ ڈاکٹر شبستان غفار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا، ہمیں سائنس کو ود ان یوتھ پروموٹ کرنا ہے، اویئرنیس جنریٹ کرنا ہے اور ان کو انکریج کرنا ہے۔ اس میں بہت سارے گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیمز ہے جو کہ بینیفٹ انڈیویجولی بھی ہے، آرگنائزیشن لیول پہ بھی ہے اور انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی ہے۔ جموں کشمیر گورنمنٹ شوڈ اسٹارٹ سم پائلٹ پروجیکٹس اور اس پروجیکٹ کو وہاں پہ ان کو لیڈرشپ ڈیولپ کرنا ہے، یوتھ کو انگیج کرنا ہے، یوتھ کو ریٹین کرنا ہے تھرو دا کیریئر آپشن، اینڈ وہ اس طریقے سے پریکٹس کرے، کیونکہ جاب کی ہمیں بہت کمیاں ہیں اور جاب خالی گورنمنٹ کے نہیں مل سکتے ہیں، سب کو جابس کریٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری انیشیٹو ضروری ہے۔ سائنس کے قومی دن کی افادیت کے بارے میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر کی انچارج ڈائریکٹر پروفیسر روحی ناز نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، Science is a way of thinking. It's a tool for progress. It's a beacon of hope for a better future. We all have to come together so that we not only celebrate the Science Day, we really look at what we must do in order to look at the total spirit of this idea. آئی آئی ٹی جموں میں فزکس شعبے کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سنت کمار تیواری نے سائنس کے قومی دن سے متعلق اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا،
आज के दिन साइंस में भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन के नोबेल प्राइज विनिंग वर्क रमन इफेक्ट को याद करने के लिए है। साथ ही IISc, RRI और ISCS जैसे रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए उनके कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करने का भी दिन है। हमें आशा है कि आने वाले वर्षों में इंडियन साइंस एक नई हाइट अटेंड करेगा। साइंस के कौमी दिन के मौके पर डिग्री कॉलेज बड़गाम में भी एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मुक़र्रिरीन ने इंसान की ज़िंदगी में साइंस के रोल को उजागर किया। ख़जाने के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत पंकज चौधरी ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। आज माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 29 तारीख़ है। अगरचे रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने या न आने की अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है, ताहम ये बात तय है कि कल या इतवार को पहला रोज़ा होगा। रोज़ों से इंसान की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इस बारे में स्किम्स सोवरा में इंटरनल मेडिसिन और पल्मोनोलॉजी शोबे के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सईद मुदस्सर कादरी ने कहा, जो स्पेशली पेशेंट्स होते हैं, उनका वजन ज्यादा होता है, फैटी लिवर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर के भी चांसेस होते हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम होता है जब वो अपने आप को वापस रिगेन कर सकते हैं, अपनी सेहत को वापस ला सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर जिनको ज्यादा होता है, शुगर्स कंट्रोल नहीं होते हैं, उनको भी इससे काफी फायदा होता है। मैक्सिमम जो मरीज होते हैं वो रोजा रख सकते हैं। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है वो भी रोजा रख सकते हैं, किसी को शुगर की तकलीफ है। बस इसमें ये ख्याल रखना है, जैसे जिनको शुगर की तकलीफ है उनको हो सकता है दवाइयों का थोड़ा डोज मॉडिफाई करना पड़े, हो सकता है दवाइयों की किस्म बदलनी पड़े। हाँ, किसी शुगर के पेशेंट को इंसुलिन चल रहा है, उनको थोड़ा केयरफुल रहना है जब वो रोजा रखते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि रोजा रखना उनके लिए हाई रिस्क है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज है, किसी को हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, एडवांस हार्ट फेलियर है, किसी को किडनी स्टोन्स है और काफी प्रॉब्लम कर रहे हैं, कई पेशेंट हैं जिनको क्रॉनिक लंग डिजीजेज हैं, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या उनका कैंसर इस वक्त अरूज पे है, वो इससे एहतियात बरत सकते हैं। वाज़ेह रहे कि आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से रमज़ान के पूरे महीने में इस मुक़द्दस महीने की अहमियत और इंसानियत के दीगर पहलुओं से मुतलिक रोज़ाना की बुनियाद पर एक ख़ुसूसी कैप्सूल नशर हुआ करेगा। बिजली महकमा रमज़ानुल मुबारक महीने के दौरान जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में लोगों को बिला खलल बिजली फराहम करने के लिए खातिर खा इक़दामात कर रहा है। इस ज़िम्न में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी H. राजेश प्रसाद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इस साल भी हमने पुख्ता बंदोबस्त किया है और थोड़ा एक्स्ट्रा हमें पावर प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, उसके भी हम बंदोबस्त किया है। हम एक्स्ट्रा पावर प्रोक्योर करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो लोगों को रमजान के वक्त जो प्रेयर्स करने में कोई दिक्कत ना हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रमज़ानुल मुबारक की आमद पर लोगों को मुबारकबाद दी है। दरियास्ता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो मुक़द्दस महीने के दौरान लोगों के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलत दस्तयाब रखे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा ने कहा है कि मुल्क को तपेदिक से पाक करने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। आज पूरी ओडिशा में तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में इख्तिराइयत से मुतलिक 9वें कौमी समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के हर एक ज़िले में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर मराकज़ खोलने का इरादा रखती है। इधर जम्मू कश्मीर में भी TB बीमारी का कला कमा करने के लिए कोशिशें जारी हैं। आज डिस्ट्रिक्ट TB सेंटर द्रुकजन श्रीनगर में एक मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। TB मुखालिफ मुहिम की स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर अदफर यासीन ने हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान के साथ बात करते हुए कहा, जिनको भी ये टीबी की अलामातें हों, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी, 2 हफ्ते से ज्यादा का बुखार, थूक के साथ खून का आना, वजन का घटना, शाम को पसीने आना या और कहीं जिस्म में दर्द होना या कहीं पे स्वेलिंग होना, ये सब टीबी की अलामतें हो सकती हैं। इनकी जांच मुफ्त है, इलाज मुफ्त है। गवर्नमेंट की तरफ से उनके अकाउंट्स में डायरेक्टली 1000 रुपए माहाना चले जाते हैं। उनकी दवाई मुफ्त होती है ताकि हम जड़ से इस बीमारी का खात्मा कर सके। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर सरगर्म कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस ताल्लुक से जब हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर R.L. हांगुलू से बात की तो उन्होंने कहा, तमाम कश्मीरियों से अपील करता हूं कि कश्मीर और कश्मीरियों का नाम दुनिया में हमेशा रोशन रहा है। अगर इसको कायम रखना है तो हम सब लोगों को नशे से परहेज करना चाहिए। इससे हमारे मुल्क का और हमारे समाज की बर्बादी हो सकती है। कश्मीर और कश्मीरियों का नाम दुनिया भर में हमेशा रोशन रहा है। जवानों को खास पर इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जवान ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर इसको कायम रखना है तो हम सब लोगों को नशे से परहेज करना चाहिए। वादी में मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र स्कूलों की सरमाई तातीलात में तोसी कर दी गई है और अब स्कूल 7 मार्च को खुलेंगे। वज़ीर तालीम सकीना ईतो ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, स्नोफॉल काफी एरियाज में हुआ है, अभी मुश्किल है अभी स्कूल अटेंड करना, तो हमने फैसला किया है कि हम 6 मार्च तक अभी छुट्टियां करेंगे। नासाजगार मौसमी हालात के चलते जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यूटी के हार्ड जोन्स में 1 मार्च और 3 मार्च को मुनक़द होने वाले 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात बोर्ड की वेबसाइट www.jkbose.nic.in पर हासिल कर सकते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को तफसीलात देते हुए बोर्ड के जॉइंट सेक्रेटरी इम्तिहानात सूरज सिंह राठौर ने कहा, हमारे जो हाई रिचेस जो है वो टफ टेरिन जो है उनको हमने डेजिग्नेट किया हुआ है हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन है। कश्मीर डिवीजन में भी है हार्ड जोन के सेंटर और जम्मू डिवीजन में भी है हार्ड जोन के सेंटर। तो इन जोन्स में जो है वो पेपर पोस्टपोन किए गए हैं। 1 मार्च को यानी कि कल सैटरडे को 10th और 12th का जो होना था एग्जाम, इन दोनों को पोस्टपोन किया गया है कल वाले। और इनकी जो अगली डेट्स हैं वो 10th एग्जाम जब पूरे 10th के खत्म हो जाएंगे 25 मार्च को ये एग्जाम जो है इनका रीशेड्यूल किया गया है। और जो 12th वाला है वो हम ले रहे हैं 24 मार्च को। 11th का एग्जाम जो है वो हार्ड जोन एरियाज जो कि 3 मार्च को जो होना है, ये एग्जाम जो है अब वो पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू इनक्लेमेंट वेदर। बोर्ड की जब भी जेके बोस की वेबसाइट आप खोलेंगे तब उस पे आपको ये मिल जाएगा। उसमें वेबसाइट है www.jkbose.nic.in। आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने आज कोहिमा में नॉर्थ ईस्ट जोन के आकाशवाणी स्टेशंस की प्रोग्राम और कमर्शियल मीटिंग्स की। इस दौरान उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कैनवास को जारी किया जिसमें मकामी रवायात की भरपूर अक्कासी की गई है। भारत 3 मार्च से 5 मार्च तक 12वीं इलाकाई 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेज़बानी कर रहा है। वजारत इत्तलात और नशरियात के एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि यह फोरम बाहमी मुशावरत का एक आला तरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा जिसकी बदौलत देरपा तरक्याती अहदाफ को हासिल करने में मदद मिलेगी। 1 मई से 4 मई तक मुनक़द होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में तख्लीक़कारों और कहानीकारों को यूट्यूब शॉर्ट्स बनाकर भारत के नज़रिए की अक्कासी करने का मौका फराहम हो रहा है। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के सरबरा डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि आज शाम के बाद मौसम खुशगवार होने का इम्कान है, ताहम 2-1 रोज़ के बाद मुख्तलिफ इलाकों में फिर से हल्की बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा, वेदर कल से ठीक है और 3 मार्च को जो है कि WD फिर से लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो के चांसेस हैं। पहाड़ी इलाकों में लगभग मॉडरेट स्नोफॉल भी हो सकता है, कुछ एक जगहों पे हैवी स्नोफॉल को भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन कोई बड़ा WD नहीं है। बाकी 4th ऑनवर्ड्स मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं पूरी तरह लगभग 9 मार्च तक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों और बर्फबारी की वजह से अभी भी आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है। SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि शहर पर ट्रैफिक की आवाजाही से मुतल्लिक फैसला कर लिया जाएगा और पहले दरमानदा गाड़ियों को भी अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होने की इजाज़त दी जाएगी। आकाशवाणी भद्रवा के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव गुलाम नबी मीर आज अपनी नौकरी से सुबुकदोश हो गए। स्टेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम्स इनायतुल्ला गौहर ने गुलाम नबी मीर की खिदमात को सराहा है। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हज़रत सईद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स उनके आस्तान आलिया वाक़ा नरपरिस्तान फ़तेह कदल में मनाया गया।
حضرت شمسالدین ختلانی رحمتہ اللہ کا عرس مبارک بھی آج ان کے آستان عالیہ واقع نوا بازار سری نگر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. دریاسنا پیران پیر حضرت سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی آج مذہبی جوش خروش کے ساتھ منایا گیا. وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران آنے والے خواتین کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کو خواتین کے دن کے موقع پر مختلف شعبوں میں خواتین کے رول کو اجاگر کیا جانا چاہیے. موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7 بجے اور غروب آفتاب شام 6:27 پر ہوگا. آخر میں خاص خبروں پر ایک اور نظر. بھارت اور یورپی کمیشن نے باہمی رشتوں کو معیار کی بلندیوں تک لے جانے کا دہرایا عزم. سائنس کا قومی دن آج. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اختراعیت کو فروغ دینے کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی شعبے کی زیادہ سے زیادہ جدید کاری پر دیا زور. موسم میں تبدیلی کے پیش نظر وادی کے تعلیمی اداروں میں سرمائی تعطیلات میں 6 مارچ تک توسیع. اور انتظامیہ نے رمضان المبارک کے دوران بلا خلل بجلی سپلائی کرنے کا دلایا یقین. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.